Students, I am Vishnu Tak welcomes you in the online class of Rajasthan Public School Pauta. We will talk about the Raoult's law. ये हो गया था पिछले वीडियो में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature the partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction which is present in the solution. Okay students, according to this law the at constant temperature the partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction which is present in the solution. Okay, according to this law, at constant temperature the partial vapor pressure, जो हम निकालना चाहते हैं राउट्स लॉ इसी वजह से आया, of a component is directly proportional to its mole fraction, ये याद रखने की बात, which is present in the solution. Suppose that, मैंने पहले बताया कि हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे जिनमें केवल दो कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट. सपोज दैट इन ए सॉल्यूशन देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि ए हम सोल्यूट को मानते हैं और बी सोलवेंट को मानते हैं. इनके पार्शियल प्रेशर PA एंड PB एंड देयर मोल फ्रैक्शन इज XA एंड XB. इतना मैंने बता दिया था. अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ PA is directly proportional to XA which is the mole fraction and PB is directly proportional to XB which is the mole fraction of component B. When we remove this proportional sign then we should take a constant here which is P naught A. And what is P naught A? P naught A is the vapor pressure of component A at pure state. Remember this. Pure state में किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान भी पड़ जाना चाहिए. एंड अगेन हेयर PB इक्वल टू P नोट B इंटू XB एंड P नोट B इज द वेपर प्रेशर ऑफ B at pure state. Quite simple. Suppose that a solution contain only two component A and B and their partial pressure is PA and PB and mole fractions are XA and XB. Then according to Raoult's law, PA is directly proportional to XA. When we remove this proportional sign then we should take a constant here and constant is P naught A. P naught A is the vapor pressure of A at pure state. And same thing is here,
PB directly proportional to XB and PB equal to P naught. P naught B is the constant which is the vapor pressure of B at pure state. Student, you should remember this. It is equation 1 and it is equation 2. According to Dalton's law, the total vapor pressure P equal to the sum of the partial pressure of A and B. Means P is the total vapor pressure equal to PA plus PB and it is equation 3. Put the value of equation 1 and 2 into equation 3, then what will happen? P equal to P naught A into XA plus P naught B into XB and it is equation number 4. You should copy this by pause this video. What will happen next? We know that XA plus XB equals to 1. ये आप लोगों ने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तब ध्यान दिया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट हो उन सब के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है. 2 कंपोनेंट सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, तो उनके मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होगा. मींस XA इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 5 हम ले लेते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 into equation 4. What will happen? P equals to P naught A 1 minus XB. Value of XA put here. Then P naught B into XB. P equal to, by multiplying this, P naught A minus P naught A into XB plus P naught B into XB. P equals to P naught A plus P naught B into XB minus P naught A into XB. हमने केवल ये जो कंपोनेंट है इसको यहाँ ले लिया है और इसको पीछे ले लिया, कुछ नहीं किया है. सो P इक्वल टू P naught A plus XB is common here and what will happen? P naught B minus P naught A. This is the equation for calculating the total vapor pressure of a solution. According to this equation, it is clear we can relate the total vapor pressure of a solution only 1 mole fraction of a component. Okay? मतलब हम टोटल जो वेपर प्रेशर है उसको केवल एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से भी कोरिलेट कर सकते हैं. इस इक्वेशन से हम टोटल वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर अगर पता न हो तो निकाल सकते हैं. प्योर स्टेट में हमें पता होना चाहिए, जो कांस्टेंट होता है वो पता भी होता है. ओके स्टूडेंट, आप इसे कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ देखते. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ देखिए बहुत आसान है. इधर हम कंपोनेंट ए लेते हैं, इधर कंपोनेंट बी लेते हैं. यहां पे मोल फ्रैक्शन
और इधर वेपर प्रेशर। मान लीजिए ये है P नोट A, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ A एट प्योर स्टेट, एंड इट इज P नोट B। P नोट B का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको एक चीज और पता चलेगी कि दोनों में कौन ज्यादा वोलेटाइल है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा। मींस वेपर प्रेशर ऑफ बी आपको ज्यादा दिख रहा है ग्राफ में, इसका मतलब बी जो कंपोनेंट है वो ए की तुलना में अकॉर्डिंग टू ए ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है। इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए इक्वल्स टू 1 होगा। एक्स बी यहां पर नहीं है, मतलब बी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए बी इक्वल टू 0 होगा। यहां एक्स बी इक्वल टू 1 होगा और एक्स ए इक्वल टू यहां 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कंपोनेंट ए नहीं है, ओनली बी है। जब हम इस पार्ट को मिलाएंगे तो ये जो एरिया है वो ए को बताएगा, पी ए को। पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जो एरिया है वो पी बी को बताएगा पी नोट बी इंटू एक्स बी, और जब हम इसको मिला देंगे तो ये जो कंप्लीट एरिया है वो पी को बताएगा पी ए प्लस पी बी। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ। आप इस जो ग्राफ है इसमें कई चीजें पता चल जाती हैं हमें कि बी मोर वोलेटाइल देन ए। ओके, सो यू कैन कॉपी दिस बाय पॉज दिस वीडियो। राउट्स लॉ नाउ कम्स टू एंड। आई शुड रिपीट, राउट ने किया क्या कि जब डाल्टन ने बताया कि हम किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर से निकाल सकते हैं, या कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसका टोटल होता है। अब पार्शियल वेपर प्रेशर कहाँ से लाएं, इसके लिए राउट्स ने एक लॉ दिया, उसने एक रिलेशनशिप बताई पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, जो अभी आपने देखा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया। देखो, जो ही राउट्स का लॉ आया, राउट्स लॉ के बाद में सॉल्यूशंस को अलग तरीके से डिफाइन करने की होड़ लग गई कि सॉल्यूशन को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। तो हम यहां बताते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको रिमेंबर करा दूं कि आप राजस्थान पब्लिक स्कूल पावटा की ऑनलाइन क्लास में हैं, आरपीएस। Types of solution. On the basis of Raoult's law, there are two types of solutions. What their name? First, ideal solution, and second one is non-ideal or real solution. आइडियल इज ए फिनोमेनॉन, हम पढ़ चुके हैं आइडियल गैसेस, आइडियल कंडीशन अननोन है मेरे हिसाब से। आइडियल कंडीशन आ ही नहीं सकती। एक आइडियल स्टूडेंट, व्हाट इज आइडियल स्टूडेंट? विच ओबे ऑल रूल्स ऑफ स्कूल एंड स्टडी, सभी रूल्स का जो पालन कर रहा है, विच इज ओबे, वो आइडियल स्टूडेंट है। वो ऐसा तो कोई नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन भी एक फिनोमिनॉन है जिससे हम बताएंगे कि सॉल्यूशन आइडियल होगा कब, फिर उससे डेविएट होने वाले नॉन आइडियल और रियल जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? जो ये फिनोमिनॉन है आइडियल और नॉन आइडियल की, वो एट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है। इसके बीच में दो ही चीजें मैंने आपको बताया, एक अपना सोल्यूट है और एक है सॉल्वेंट। मान लीजिए सोल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है। आपको पता होना चाहिए कि जब प्योर स्टेट में होते हैं तो
ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट है, लिक्विड्स हम पढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स तो होगा। और प्योर स्टेट में बी और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स फिनिश हो जाते हैं और न्यू अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन में बनते हैं ए और बी के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट ए एंड बी, उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट और सॉल्वेंट मतलब प्योर सोल्यूट और सॉल्वेंट के प्योर कंपोनेंट्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सॉल्यूशन बन जाता है आइडियल। और ये इक्वल नहीं होते हैं, कम या ज्यादा होंगे, मोर लेस होंगे, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर इक्वल नहीं होते हैं तो फिर सॉल्यूशन आइडियल नहीं रहता, सॉल्यूशन उस समय कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? व्हेन देयर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस but it's urgent. What were we talk about? Ideal solution. Ideal solution की जो फिनोमेनॉन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो डिपेंड करती है अट्रैक्शन फोर्सेज पे। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन component A and B is equal to the attraction forces of pure components, then the solution is known as ideal solution. So what is the definition of ideal solution? When the attraction force between the components of solution, means solute and solvent, is equal to the attraction force of pure component A and B, then the solution is known as ideal solution. Okay, so you can write this definition. I can repeat this. When the attraction force of the components of solution is equal to the pure components of this solution, then the solution is known as ideal solution. Okay students, what is the characteristics of ideal solution? There are only 3 characteristics. First, volume. Volume of solution is equal to the sum of the volume of solute and solvent. The volume of ideal solution is equal to the sum of the volume of solute and solvent. Hence, the change in volume of solution is also 0. कोई change नहीं होता है. Means volume of solution is equal to volume of solute plus volume of solvent. दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमने जितना मिलाया सॉल्वेंट और सोल्यूट उसके इक्वल होना चाहिए। मींस समझ लीजिए कि 5 ml हमने सोल्यूट मिलाया, 10 ml सॉल्वेंट में मिलाया, तो टोटल हो गया 15 ml, और वो 15 ml ही हो तब वो अपना आइडियल सॉल्यूशन होता है। मींस जो डेल्टा V है सॉल्यूशन का, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एंथैल्पी की। स्टूडेंट्स, जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस समय ना तो हीट गेन की जाती है और ना ही हीट का लॉस होता है। मींस देयर इज नो लॉस ऑफ हीट और नो गेन ऑफ हीट। देन द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ दिस सॉल्यूशन, देन
change of enthalpy of solution equal to 0. Hence, in ideal solution, the change of enthalpy of solution is also 0 because there is no gain of heat and no loss of heat. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आइडियल सॉल्यूशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज ideal solution must obey the Raoult's law at any border line of concentration. Means PA equals to होगा P नोट A इंटू एक्स ए के, PB इक्वल्स टू होगा P नोट B इंटू एक्स बी के, और P इक्वल टू होगा P नोट A इंटू एक्स ए प्लस P नोट B इंटू एक्स बी. So student, there are three characteristics of ideal solution. Ideal solution क्या है? जिस solutions के components के बीच में लगने वाला attraction force प्योर components के बीच में जो attraction force लगता है उसके equal हो, वो ideal solution होगा. तीन characteristics हैं. First है volume of ideal solution, हमेशा equal होगा sum के. किसके sum के? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट. हमेशा इसके टोटल के बराबर होगा, कम ज्यादा नहीं होगा. मतलब जो सॉल्यूशन का चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो 0 होगा. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे उस समय न तो हीट लॉस होगा न हीट गेन की जाएगी. मींस चेंज ऑफ एंथैल्पी इज आल्सो 0. थर्ड है आइडियल सॉल्यूशन हमेशा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रहेगा. Means it must obey the Raoult's law at any border line of concentration. Means PA हमेशा इक्वल रहेगा P नोट A इंटू एक्स ए के, PB हमेशा इक्वल टू रहेगा P नोट B इंटू एक्स बी के, P इक्वल टू हमेशा रहेगा P नोट A इंटू एक्स ए प्लस P नोट B इंटू एक्स बी. Now the example of ideal solution. There are only two examples. N-hexane plus N heptane. This is ideal solution. Methanol plus ethanol. So this is the phenomenon of ideal solution. Ideal solution अगर आपको अच्छे से आता है तो आप नॉन आइडियल और जो रियल सॉल्यूशंस हैं जिनको ये ओबे कर रहा है वो नहीं करेगा, तो आसानी से समझ पाएंगे. आप साथ ही साथ वीडियो पॉज करते हुए नोट्स भी बनाते चलिए. एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप कंटिन्यू योर स्टडी विद ऑनलाइन क्लास ऑफ राजस्थान पब्लिक स्कूल पावटा. थैंक यू स्टूडेंट.